Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 13 for business organization and here we will discuss banking. The topics to be covered are what is a bank, types of banks, role of commercial banks, who is a customer, relationship between banker and customer, duties of a bank, types of bank accounts, modes of making payments, modes of creating charge and other bank services. Now first is what is a bank? A banker is one who in the ordinary course of his business honors checks drawn upon him by persons from and for whom he receives money on current accounts. So एक बैंकर वो पर्सन होता है जो किसी भी टाइम पे अपने बिजनेस में चेक ड्रॉ करता है उन लोगों पे जिसको उससे मनी रिसीव करनी होती है. The function of receiving money from his customers and repaying it by honoring their checks as and when required is the function above all other functions which distinguishing a banking business from any other kind of business. So, बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है जो मनी के साथ डील करता है. बैंक कोई भी सरप्लस मनी को एक्सेप्ट करता है उन लोगों से जिन्हें वो मनी इमीडिएटली नहीं चाहिए और उन लोगों को लेंड करता है यानी कि उधार पे देता है जिन लोगों को पैसों की जरूरत होती है. सो बैंक्स एक्सेप्ट सरप्लस मनी फ्रॉम दोज हु आर नॉट नीडिंग इट इमीडिएटली एंड लेंड इट टू दोज हु नीड इट. Now types of banks. On the basis of their functions, we can classify banks as commercial banks. Commercial banks होते हैं oldest institution है जो wide network of branches में फैले होते हैं. Commercial bank is a monetary institution which serves the interest of its depositors by utilizing their funds in profitable ventures and provide a variety of services to its customers. सो एक कमर्शियल बैंक वो मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन होता है जो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट सर्व करता है उनके फंड्स को यूटिलाइज करके किसी भी प्रॉफिटेबल वेंचर में, मतलब जिससे उसको प्रॉफिट मिल सकता है और अपने कस्टमर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. अ कोऑपरेटिव बैंक इज अ वॉलंटरी association of members for self-help and caters to their financial needs on a mutual basis. So cooperative bank होते हैं voluntary association होते हैं जो self help के लिए बने होते हैं और financial needs को cater करते हैं किसी भी अपने customers की. These banks are also subject to control and inspection by the Reserve Bank of India. Then third type of bank is the land development banks. These banks provide long-term credit for agriculture for purposes such as pump sets, tractors, digging up wells, land improvement, etc. So land development banks होते हैं जो basically land development के साथ जुड़े होते हैं जैसे कि pump sets, tractors या wells खोदने के लिए या फिर land को improve करने के लिए, मतलब agriculture से जुड़ी किसी भी activity के लिए credit पे money provide करते हैं. These banks raise their resources mainly by flotation of debentures subscribed by the State Bank Group, commercial banks, LIC and by RBI. Next is RRBs, that is regional rural banks. The main objective for setting up of the RRBs was to provide credit and other facilities especially to small and marginal farmers, agricultural laborers, artisans and small entrepreneurs in rural areas. So rural areas में जो basically छोटे छोटे farmers होते हैं या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स बने हैं. देन इंडस्ट्रियल बैंक्स. ये बैंक्स होते हैं जो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं. सच बैंक्स प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल सेक्टर. एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक्स इन इंडिया आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज IDBI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज IFCI, Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited that is ICICI etc. Next is the central bank. हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जिसे हम इसी सेंट्रल बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम में. बाकी सारे बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए एक सेंट्रल बैंक बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री में. फॉर इंडिया वी हैव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द सेंट्रल बैंक.
नेक्स्ट इज द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स. अब कमर्शियल बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वो अपने कस्टमर्स को अलग अलग तरीके की सर्विसेज देते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द कस्टमर्स इज वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक्स. सो बेसिकली कस्टमर से डिपॉजिट्स कलेक्ट करना और उनको कस्टमर्स के बिहाफ पे रखना इज द मेन फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. देन फैसिलिटेट पेमेंट्स. बैंक्स जो है वो पेमेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं चेक्स के थ्रू, जो कि बहुत कन्वीनियंट और सेफ फंक्शन होता है. देन दे प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस. दे प्रोवाइड क्रेडिट इंफॉर्मेशन. Then discounting of bills. The bank lends money by discounting bills. Discounting a bill of exchange means the advancing of a loan against a promise to pay in future. So banks जो है वो customers को loan देते हैं एक promise के साथ कि future में वो बैंक को वापस लौटा देंगे money. Then collection of checks etc. Safety of valuables and remittance of money. So ये सारे functions होते हैं जो commercial bank provide करती है अपने customers को. Next is, who is a customer? Ordinarily, the customer of a bank means a person who has an account with the bank. So, बैंक के लिए customer वो होगा जिसका उस बैंक में account है. And according to this view, to constitute a customer of a bank, it is necessary to satisfy two conditions. So, basically दो conditions होती हैं बैंक के customer बनने के लिए. First, there must be regular transactions or that the customer must have the habit of dealing with the bank. So, बैंक के साथ अकाउंट तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में रेगुलर ट्रांजैक्शंस भी होनी चाहिए और एक हैबिट होनी चाहिए जिसके थ्रू बैंक के साथ डील करने की आदत हो कस्टमर्स को. सो वो एक बैंक का कस्टमर होता है. एंड सेकंड कंडीशन इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन देम मस्ट बी ऑफ अ बैंकिंग नेचर. जो भी ट्रांजैक्शन होती है बैंक और कस्टमर की वो बैंकिंग नेचर की होनी चाहिए. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड अ कस्टमर. कस्टमर और बैंकर के बीच में अलग अलग तरीके की रिलेशनशिप होती है. फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. जो प्राइमरी रिलेशनशिप होती है बैंकर और कस्टमर की वो अराइज होती है कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो दोनों के बीच में साइन होता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कहते हैं. कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस the moment an account is opened by a customer with a bank and this contract remains valid till the customer operates his bank as per the terms and conditions agreed between them. So contractual relationship तब शुरू होती है जब कस्टमर अकाउंट खोलता है बैंक में, और ये तब तक चलती है रिलेशनशिप जब तक उसका अकाउंट बैंक में रहता है और उस अकाउंट को वो रेगुलरली ऑपरेट करता है. देन इज द डेटर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप. The relation of a banker and customer is primarily that of a debtor and a creditor. When a customer opens an account with a bank and maintains a credit balance, the banker assumes the position of a debtor and the customer assumes the role of a creditor. So, जब कस्टमर अकाउंट खोलता है बैंक में तो वो कुछ मनी बैंक के साथ रखता है, तो उस केस में कस्टमर क्रेडिटर की तरह बिहेव कर रहा है और बैंक एक डेटर की तरह. और जितनी भी मनी डिपॉजिट करते हैं हम बैंक में वो एक तरह से डेट हो जाता है जो बैंक के ऊपर रहता है कस्टमर का. द बैंकर कैन यूज द मनी डिपॉजिटेड विद हिम बाय द कस्टमर्स इन एनी मैनर अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिशन, हिज ओनली ऑब्लिगेशन बीइंग टू रीपे द डेट एज एंड व्हेन डिमांडेड बाय द कस्टमर. इसमें सिर्फ एक ही ऑब्लिगेशन होती है, जब भी कस्टमर को वो मनी चाहिए तो वो वापस बैंक को देनी पड़ती है. नेक्स्ट इज बेली एंड बेलर रिलेशनशिप. When a bank accepts deposit of money, he does not act as a bailee. This is so because a bailee accepts the bailment of goods on the condition that the things bailed will not be utilized by him and the identical goods will be returned. But a bank does not accept money from customer on the condition that it will not be utilized and that the identical money, notes or coins deposited by will be returned. So, a banker provides for safe deposit vaults and accepts documents and valuables for safe custody. Here the banker is acting as a bailee and the relationship is that of a bailee and a bailer. एक बैंक जो है वो मनी
एक्सेप्ट करता है कस्टमर की, लेकिन तब वो बेली की तरह एक्ट नहीं करता, क्योंकि बेली वो होता है जब वो किसी भी एक कंडीशन पे मनी लेता है कि वो उसको यूज नहीं करेगा, लेकिन बैंकर्स जो होते हैं वो उस मनी को आगे लोन पे देते हैं, तो यानी कि वो किसी कस्टमर की मनी को यूज कर रहे हैं। लेकिन एक बैंकर जो है वो सेफ डिपॉजिट प्रोवाइड करता है किसी भी कस्टमर के लिए, तो यहाँ पे बैंकर जो है या फिर बैंक एक बेली की तरह एक्ट करता है, और जो रिलेशनशिप होती है वो बेली बेलर की हो जाती है। देन ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप, बैंकर्स जो है वो ट्रस्टीज की तरह भी एक्ट करते हैं और एग्जीक्यूटर्स की भी तरह एक्ट करते हैं। अ ट्रस्टी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड मनी एंड यूज द ट्रस्ट मनी इन अकॉर्डेंस विद द ट्रस्ट डीड एंड यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ सम अदर पर्सन नोन एज द बेनिफिशियरी। सो एक ट्रस्टी जो है वो एक प्रॉपर्टी या मनी होल्ड करता है और उस मनी को किसी बेनिफिट के लिए यूज करता है, और उस पर्सन को जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो होता है बेनिफिशियरी। सो कस्टमर और बैंकर के बीच में ट्रस्टी बेनिफिशियरी की रिलेशनशिप होती है। देन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, बैंक्स कुछ एजेंसी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि चेक्स की कलेक्शन या ड्राफ्ट्स और बिल्स की कलेक्शन। फिर वो इंटरेस्ट भी कलेक्ट करते हैं, डिविडेंड्स कलेक्ट करते हैं, सिक्योरिटीज पे रेमिटेंस अरेंज करते हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम्स की पेमेंट करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती है कस्टमर को उसके हिसाब से। एंड इन ऑल सच केसेस द बैंकर इज एक्टिंग एज द एजेंट ऑफ द कस्टमर एंड द कस्टमर इज एक्टिंग एज द प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज द ड्यूटीज ऑफ अ बैंक। अब बैंक की कुछ ड्यूटीज होती हैं बैंकर और कस्टमर रिलेशनशिप में, जो ऑब्लिगेशंस बैंक को फॉलो करनी पड़ती हैं। फर्स्ट इज द ऑब्लिगेशन टू ऑनर चेक्स। अगर कस्टमर के अकाउंट में मनी है तो बैंक को उसके नाम पे जितने भी चेक्स ड्रॉ हुए हैं उन्हें ऑनर करना ही पड़ता है। देन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन सीक्रेसी। जो रिलेशनशिप होती है बैंकर और कस्टमर के बीच में वो कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती है। बैंक को ये राइट नहीं होता वो किसी और की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कस्टमर को या कोई आउटसाइडर को उसकी डिटेल्स दे। सो एक ऑब्लिगेशन होती है उनके साथ जो कि होती है सीक्रेसी मेंटेन करने की। देन ऑब्लिगेशन टू फॉलो कस्टमर्स इंस्ट्रक्शंस। बैंकर जो है वो एक लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर होता है कि उसको कस्टमर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में होते हैं दोनों। देन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स। Banker is under an obligation to maintain accurate record of all transactions of the customer made with the bank. And last is the obligation to give notice before closing the bank. अगर किसी वजह से बैंक कस्टमर का अकाउंट क्लोज करना चाह रहा है तो उस केस में पहले उन्हें एक नोटिस सर्व करना पड़ता है बैंक कस्टमर को। बिना बताए वो किसी का भी अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। Now the rights of a bank. First is the right of general lien. One of the most important rights enjoyed by a bank is the right of general lien. Lien is a right of a person to retain goods belonging to another until the demands of the person is in possession are satisfied. Lien एक ऐसा राइट होता है एक पर्सन का कि वो किसी दूसरे के गुड्स या बिलोंगिंग्स को रिटेन कर सकते हैं जब तक कि वो पर्सन उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करता। और सेक्शन 171 के अंडर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, दिस कॉन्फर्स द राइट ऑफ जनरल लीन ऑफ द बैंकर्स। जनरल लीन entitles the banker in possession of retained goods to retain goods and securities till all its claims against the customer are satisfied. जब बैंक किसी भी कस्टमर को लोन देता है तो उस केस में अगर वो लोन नहीं पे कर पाते वापस कस्टमर, तो उस केस में बैंक जो है उस सिक्योरिटी को अपने पास रिटेन कर सकते हैं। दिस इज द राइट ऑफ जनरल लीन। Next is the right of set-off. Right of set-off is the right of a debtor to adjust the amount due to him from a creditor against the amount payable by him to the creditor to determine the net balance payable by one to another. Like any other debtor, a bank has also a right to set off. When a customer has two or more accounts in the same name and capacity in a bank, the bank has the right to adjust the amount standing to the credit of the customer against the debit balance in the other account. एक बैंक के पास ये राइट होता है कि अगर एक कस्टमर के सेम नेम पे दो अकाउंट्स खुले हुए हैं तो वो उन दोनों में एडजस्टमेंट कर सकता है। अगर एक कस्टमर के एक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और दूसरे में 8,000 हैं, और अगर कस्टमर 15,000 का चेक विड्रॉ करता है एक अकाउंट पे, तो बैंक उस 15,000 के अमाउंट को दोनों अकाउंट के अंडर बैलेंस कर सकते हैं।
Next is the right of appropriation. A customer may owe several distinct debts to the bank. When the customer deposits some money in the bank without specification instructions and the amount is not sufficient to discharge all debts, then the problem arises as towards which debt this amount should be adjusted. In the absence of any specific instruction, the bank has the right to appropriate the deposited amount to any loan, even to a time-barred debt. But the banker must inform the customer about the appropriation. अगर एक कस्टमर बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेट्स ओ करता है बैंक को और उसके अगेंस्ट वो कुछ मनी डिपॉजिट कराता है विदाउट स्पेसिफाइंग कि वो किस डेट के अगेंस्ट मनी डिपॉजिट करा रहा है, तो बैंक अपने हिसाब से उसे अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बैंक को पहले कस्टमर को बताना पड़ता है कि ये किस डेट के अगेंस्ट वो मनी यूज कर रहे हैं. देन राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन. बैंक के पास ये राइट होता है कि वो लोन्स पे या एडवांसेस पे इंटरेस्ट और या फिर कमीशन चार्ज कर सकते हैं. देन द राइट टू क्लोज द अकाउंट. बैंक के पास ये राइट होता है कि वो एक अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें एक रिटन इंटीमेशन देना पड़ता है कस्टमर को. नाउ द टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स. बैंक अकाउंट्स दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट में रेकरिंग अकाउंट आता है और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एंड डिमांड डिपॉजिट्स में होते हैं सेविंग्स फंड अकाउंट एंड करंट डिपॉजिट अकाउंट. नाउ फर्स्ट इज द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट सबसे ज्यादा पॉपुलर अकाउंट होते हैं किसी भी बैंक में. ये अकाउंट्स जो होते हैं ये उन लोगों के लिए सूटेबल होते हैं जिन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मनी को इन्वेस्ट करना होता है. फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी को डिपॉजिट करवाया जाता है, और ये टाइम जो होता है ये 45 डेज से काफी सालों के लिए वेरी कर सकता है. एंड दिस पीरियड इज डिसाइडेड by the customer according to his convenience. Next is the current account. करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन के लिए या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए या पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए. बेसिकली करंट अकाउंट जो होता है वो ज्यादातर कंपनीज खुलवाती हैं अपने नाम पे. इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती नंबर या फिर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स में, जितने भी आप एक दिन में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं. और इसमें जो अमाउंट होता है वो डिमांड पे रीपेबल होता है. द बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप सफिशिएंट कैश टू मीट सच डिमांड्स. नेक्स्ट इज द सेविंग्स अकाउंट. सेविंग्स फंड अकाउंट जो होता है वो लोग ऑपरेट करते हैं और उन्हें ओपन करते हैं जिन्हें अपनी सैलरी का या इनकम का कुछ पार्ट फ्यूचर नीड के लिए सेव करना पड़ता है, और इसके लिए उनको इंटरेस्ट भी मिलता है. ये जो अकाउंट होता है ये बेसिकली सेविंग की हैबिट को प्रमोट करने के लिए खोला जाता है. नेक्स्ट इज द रेकरिंग अकाउंट. रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो रेगुलर मंथली इनकम लेते हैं, और ये जो अकाउंट होता है ये दिस इज इंटेंडेड टू एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग डिपॉजिटर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. इस अकाउंट में जो डिपॉजिटर होता है वो फिक्स सम ऑफ मनी डिपॉजिट करवाते हैं हर महीने एक अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और स्पेसिफाइड पीरियड के एंड में उन्हें वो सारी मनी वापस मिलती है. उसके बाद उस पर इंटरेस्ट भी लगता है. जैसे कि अगर अमाउंट हम डिपॉजिट करवाते हैं कुछ भी तो वो हमेशा 10 के मल्टीपल्स में ही होता है, और इसके लिए जो टाइम होता है वो 1 साल से 10 साल का हो सकता है. नेक्स्ट इज द मोड्स ऑफ मेकिंग पेमेंट. द बैंक शैल मेक द पेमेंट्स ओनली व्हेन अ डिमांड इज मेड. अ डिमांड कैन बी मेड बाय राइटिंग अ चेक ऑन द बैंक. सिमिलरली बैंक ड्राफ्ट्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर पेमेंट्स. सो बैंक्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से पेमेंट कर सकते हैं. एक डिमांड होती है जो पेमेंट की वो चेक के थ्रू भी हो सकती है या फिर ड्राफ्ट्स के थ्रू भी हो सकती है. बैंक्स परफॉर्म अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रेमिटिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब इसमें चेक्स भी आ सकते हैं, ड्राफ्ट्स भी आ सकते हैं या फिर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं. नाउ द एडवांसेस. जो प्राइमरी कंसर्न होता है बैंक का एज अ लेंडर शुड बी सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ऑफ एडवांसेस. Besides, banks also need a good return from the employment of their funds to meet their expenses. This is known as profitability. So basically, बैंक का जो main concern होता है वो होता है safety, liquidity and profitability. Banks have to maintain a balance between liquidity and profitability in such a way that they should be able to meet the demand of depositors for cash and at the same time earn sufficient profit from the advances.
सो बैंक्स को इतना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में कि वो कस्टमर की या डिपॉजिटर्स की डिमांड्स को भी कर सके कैश के लिए और सेम टाइम पे प्रॉफिट भी कमा सके. Banks provide various types of advances to its customers according to their needs and repaying capacity. और जो advances वो provide करती है वो 4 forms में होती है: loans, overdraft, cash credit या फिर discounting of bills. Now loan. A loan is a financial arrangement under which an advance is granted by the bank to the borrower on a separate account called the loan account. लोन एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर बैंक किसी भी बोरोवर को एक एडवांस ग्रांट करती है, यानी कि उन्हें उधार पे पैसे देती है एक अलग अकाउंट के थ्रू जिसे लोन अकाउंट कहते हैं. When a loan is granted against security or otherwise, the entire amount of loan is paid to the borrower in lump sum, either in cash or by transferring the amount to his account in the bank. जब भी लोन ग्रांट करती है बैंक किसी सिक्योरिटी या फिर किसी भी चीज के अगेंस्ट, तो पूरा का पूरा अमाउंट लंप सम में दिया जाता है, या तो कैश में या फिर उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके. Interest is charged on the whole amount of loan sanctioned, irrespective of the amount actually withdrawn by the borrower. Loans are sanctioned for short, medium and long periods. लोन्स हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए. जो लोन्स रीपेबल होते हैं 1 साल के अंदर अंदर, दे आर शॉर्ट टर्म लोन्स. ये ज्यादातर सूटेबल होते हैं वर्किंग कैपिटल नीड्स को मीट करने के लिए. लोन्स जो 1 साल से 5 साल के लिए रीपेबल होते हैं वो होते हैं मीडियम टर्म लोन्स, और ये लोन्स ग्रांट करते हैं फाइनेंशियल एक्सपेंशन के लिए या फिर डेवलपमेंट प्लान्स के लिए. जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म लोन्स ही देते हैं, और जो लोन्स 5 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए होते हैं दे आर दी लॉन्ग टर्म लोन्स. नाउ बैंक्स जो है वो लोन्स ग्रांट करते हैं क्योंकि जो बैंक है वो इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं इस बेसिस पे. उसके बाद इसमें बहुत कम अकाउंटिंग वर्क होता है, और बैंक्स जो है लोन अकाउंट को पीरियोडिकली रिव्यू कर सकते हैं, रोज रोज रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट इज द ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर करंट अकाउंट होल्डर को हम परमिट करते हैं कि वो क्रेडिट बैलेंस के से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक अग्रीड लिमिट के अंदर. जैसे कि एक अकाउंट होल्डर है, करंट अकाउंट होल्डर, कोई बिजनेस कंपनी है जिसका अच्छी गुडविल है बैंक के साथ, तो अगर उसके अकाउंट में सपोज 10,000 रुपीज हैं तो वो कई बार 12,000 भी विड्रॉ करवा सकते हैं. दिस इज नोन एज दी ओवरड्राफ्ट. लेकिन एक अग्रीड लिमिट होती है कि इसके लिमिट के ऊपर नहीं जा सकते वो. Thus by nature it is a temporary financial accommodation to be made use the customer occasionally. The overdraft facility is given to those who have a current account with the bank and whose business relations with the bank continues to be good. Next is the cash credit. Cash credit एक main method होता है lending का. कैश क्रेडिट एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होती है बैंक और कस्टमर्स के बीच में, जिसके तहत कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स को अलाउ करता है कि वो वहां से मनी बोरो कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टैंजिबल एसेट्स और गारंटीज. द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट एंड द कस्टमर इज अलाउड टू ऑपरेट द अकाउंट. लास्ट एडवांस इज द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स. डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है लेंडिंग का, एंड अंडर दिस सिस्टम द बैंक टेक्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज maturing within a short time, that is 60 days or 90 days, and credits the customer's account with the amount of bill after same discount. The bank waits up to the date of maturity of the bill and presents it on the date of maturity to the drawee for payment. Since the bank has to wait till the date of maturity, the bank charge interest for the remaining duration of the bill, and this amount is known as the discount. So banks जो है वो 60 दिन या फिर 90 दिन के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बैंक्स को मेच्योरिटी डेट तक के लिए वेट करना पड़ता है, तो उस डेट तक के लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और इस इंटरेस्ट को डिस्काउंट कहते हैं. While now modes of creating charge.
While lending money, the bank has to keep three principles in mind, that is liquidity, safety and profitability. In order to minimize risk in advancing money, banks usually insist on good security and would like to create a charge on the tangible assets of the borrower in favor of the bank. When a charge is created, the bank gets certain rights on the tangible assets. In case the borrower fails to repay the advance, the bank can recover its money by disposing of those assets in the market. अब जो इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं चार्ज क्रिएट करने के वो होते हैं प्लेज, हाइपोथिकेशन एंड मॉर्टगेज. नाउ अदर बैंक सर्विसेज. जो दूसरी बैंक सर्विसेज होती हैं उनमें एक है कस्टमर के बिहाफ पे मनी कलेक्ट करना, लीजिंग, टैक्स कंसल्टेंसी, merchant banking services and issuing of credit cards. Now here are some questions for you. First is, what is the relationship between a banker and his customer? And second, explain the rights and obligations of a bank. That's all for this session. Thank you and have a nice day.